Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in English from Amal Government Group Public Schools. So students, in your class nowadays we are going with the second chapter in Prose, that is the sound of music, and it's part 1, that is regarding Evelyn Glennie, who listens to sound without hearing it. This we were doing, and you had received the first video in this chapter. It is the second video of the chapter. Students, as we all know that this chapter is highly motivational chapter. As we all know that up to now we have come to know that Evelyn Glennie, how Evelyn Glennie became deaf gradually, किस प्रकार से एवलिन ग्लेनी धीमे धीमे करके डेफ हुई, जिसका आप लोगों ने अभी पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन देखा। और हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार से एवलिन ग्लेनी ने अपने इस हैंडीकैप्ड हुई थी वो, इसको किस तरीके से उन्होंने पॉजिटिव वे में यूज किया। क्योंकि जब वो स्पेशलिस्ट से मिली और स्पेशलिस्ट ने उनके कान को लेकर के ये डिक्लेयर किया कि ही इज़ नॉट एबल टू hear anything, so he should be given, or he should be sent to school for the deaf. That announcement of the specialist had made everything black to Evelyn Glennie. जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब इनको जो है डेफ के स्कूल में भेजना चाहिए, तो इससे सब कुछ ब्लैक आउट हो गया, एकदम से अंधेरा छा गया एवलिन ग्लेनी के दिमाग में। वो उसने जो है, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि इसका मतलब अब वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल पीपल की तरह बिहेव नहीं कर सकती, उसके लिए स्पेशल स्कूल्स में उसको भेजा जाए। नाउ इन दिस पार्ट that is going to be the final part of the explanation, we are going to learn how she reacted with this handicapness. जो ये handicapped की जो कंडीशन आई, उसको किस प्रकार से उसने पॉजिटिव किया अपने लिए। Passage third, page number 18, passage third. But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. This Evelyn was not a normal girl. She was not going to give up अपनी लाइफ के एम को, वो ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं थी। She was not going to give up. Okay? She was determined to lead a normal life. Although Evelyn got such shocking news, she was determined and she did not want to give up. As Evelyn was passionate about music, this news also did not break her. She was determined to live life like normal people and follow her interest in music. Evelyn, यद्यपि जब पहली बार से उन्होंने सुना कि वो एक नॉर्मल पीपल की तरह लाइफ माने स्कूल जा कर के नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकती, एक बार तो वो टूट गई, बट नहीं, डिटर्मिनेशन उसके अंदर जो था, उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में था,
इसलिए उसने डिटरमाइंड किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करेगी और उसका जो म्यूजिक की फील्ड में इंटरेस्ट है उसको परसू करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone. One day she noticed a girl who was playing xylophone. एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की थी वो xylophone प्ले कर रही थी। And from that very day she decided that she wanted to play it too. उसने निर्णय किया कि वो भी चाहती है वो xylophone प्ले करे। xylophone एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है with a row of wooden bars of different lengths. Okay, so xylophone प्ले करने की अपनी डिसाइड कर लिया कि वो xylophone प्ले करेगी। Most of the teachers discouraged her, as we all know that each and everyone is not going to encourage you for anything. If as a student you decide, you think of doing something, you will find there are various teachers, various friends of yours who will discourage you, but there are someone who will come and must encourage you. ज्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जो कि आपको डिस्करेज करते हैं। एवलिन ग्रीनी के भी साथ यही हुआ। Most of the teachers discouraged her. ज्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया। But percussionist Ron Forbes spotted her potential. But there was a teacher who was a percussionist whose name was Ron Forbes. He spotted her potential. जो percussionist थे मिस्टर रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने एवलिन की पोटेंशियल्स को स्पॉट किया। First of all, who is come to be known as a percussionist? A person who plays the drum, the tabla, इस तरह से ऐसे वाद्य यंत्रों को बजाने वाले जो कि उसको उस पे उंगली से पीट के या किसी स्टिक से मार के बजाए जाते हैं, उन्हें हम परक्यूशनिस्ट बोलते हैं। जाइलोफोन भी ऐसा ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। रॉन फॉर्ब्स जो कि उसके टीचर थे, परक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने एवलिन ग्रीनी के अंदर के पोटेंशियल की उसकी क्षमता को, क्वालिटी, एबिलिटी को पहचाना। He began by tuning two large drums to different notes. He began his teaching. And how? He took two large drums and he turned them to different notes. उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम्स लिया और he turned them to different notes. उनको different notes पे उन्होंने टर्न किया। So अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ज्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, लेकिन एक टीचर जिसका नाम था रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने, क्योंकि he was able to find the fact how Evelyn was passionate about music. उनको पता था कि एवलिन कितना पैशनेट है म्यूजिक को लेकर के, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वो एवलिन को सिखाएंगे। रॉन फॉर्ब्स थॉट दैट ही वुड टीच एवलिन टू प्ले म्यूजिक, और सिखाएंगे। म्यूजिक प्ले करना सिखाना नहीं, उसको पहली बात तो म्यूजिक फील करना सिखाना था, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू लिसन। वो उसको सुनाई नहीं पड़ता था, तो और बिना सुने, विदाउट हियरिंग, वन कैन नॉट प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन हार्मनी ऑफ द अदर इंस्ट्रूमेंट्स। जब तक कोई हियरिंग नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, तब तक वो और लोगों के साथ कैसे बजाएगा।
So the very first thing that was required over there to make Evelyn feel music, सबसे पहली चीज तो ये थी कि वो एवलिन जो है वो म्यूजिक को फील करना सीखे। और ये करने के लिए ही उन्होंने क्या किया, दो बड़े बड़े ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पे उसने टर्न किया। एंड देन डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। द टीचर told Evelyn not to listen through her ears. He suggested her to try to sense it some other way. Evelyn कहती है कि उन्होंने टीचर रॉन फॉब्स ने उससे कहा कि अपने कान से मत सुनो, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कान से she is suffering from hearing impairedness. तो उन्होंने कहा कि इसको सेंस करने का प्रयास करो फ्रॉम सम अदर वे। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down. Evelyn says that all of a sudden she realized that she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. एवलिन कहती है कि उसने जैसे जब उन्होंने कहा तो एवलिन ने महसूस किया वो हायर ड्रम को अपने वेस्ट के ऊपर और लोअर ड्रम को वेस्ट के नीचे। So the sound produced by the drums was different, so it was distinct. Both the drums made different sounds. Then he told Evelyn, he suggested to try to listen through her ears, not to listen through her ears. He suggested trying to sense it, try to feel the music some other way. We know the middle part of your body is called the waist. Now, as Ron had tuned both the drums to different notes, the upper part of Evelyn's body above the waist could feel the higher notes of the drum, and the lower part of her body, the part down from the waist, could feel the lower notes of drum. क्योंकि दो अलग अलग ड्रम्स थे, एक ड्रम जो है हायर नोट्स देने वाला था और दूसरा था वो लोअर नोट्स देने वाला था। तो उसने अलग अलग तरीके से उससे कहा। जो दोनों ड्रम्स थे, दोनों ड्रम्स की जो आवाज थी वो डिफरेंट थी, और जब ऐसे ड्रम्स को एक साथ ट्यून किया तो उन्होंने एवलिन से कहा कि अपनी कान से ना सुन के म्यूजिक को सेंस करने का प्रयास करे, कहीं और से सुनने का प्रयास करे। और इसलिए इसने क्या फील किया, इसने अपने जो हायर ड्रम था उसकी आवाज को एवलिन ने अपने वेस्ट के ऊपर फील किया, और जो लोअर साउंड था उसको अपने वेस्ट के नीचे से महसूस किया। I realized suddenly, alright, Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. So this exercise was repeated by the teacher. This is how the teacher began the exercise, and Forbes repeated the exercise. Forbes ने एक्सरसाइज को रिपीट किया, और जल्दी ही एवलिन ने डिस्कवर किया कि उसके बॉडी के अलग अलग जो पार्ट हैं अलग अलग नोट्स को सेंस कर सकते हैं। This is how Evelyn can listen to sound, although she cannot hear. She can sense different notes in different parts of her body. एवलिन अलग अपने शरीर के अलग अलग पार्ट से अलग अलग नोट्स को सेंस कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. In this way, Evelyn Glennie learned to open
her mind and body to sounds and vibrations. इस तरीके से एवलिन ने जो है अपने माइंड को ओपन करना सीखा, माइंड और बॉडी को ओपन करना सीखा साउंड के प्रति और वाइब्रेशंस के प्रति. Ron Forbes taught Evelyn to respond to different sounds. Different parts of Evelyn's body responded to different sounds, and that is how she could identify the notes. क्योंकि उसके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में अलग अलग म्यूजिक के नोट्स को वो महसूस कर सकती थी. इसीलिए इस तरीके से उसने क्या किया, डिफरेंट साउंड्स और डिफरेंट वाइब्रेशंस को उसने महसूस करना शुरू कर दिया, आवाज को पहचानना शुरू कर दिया, डिफरेंट वाइब्रेशंस को पहचानना शुरू कर दिया. और एक बार, नाउ वंस शी कुड आइडेंटिफाई द साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, द हर्डल हैड बीन ओवरकम. आई हैड लर्नड. उसकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो सुनने की प्रॉब्लम थी, और वो सुनने के लिए अब उसके पास कान तो नहीं थे, लेकिन वो अपने पूरे शरीर से कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी. और ये बात जो नोटेबल है वो ये कि अगर उसके वेस्ट के ऊपर कोई म्यूजिक सेंस हो रहा है, कोई साउंड सेंस हो रहा है, तो इसका मतलब वो हायर ड्रम का है. तो कहां से वो सेंस कर रही है उस पे डिपेंड करता था कि साउंड क्या है. इस तरीके से उसकी हियरिंग जो हर्डल था, दैट हर्डल हैड बीन ओवरकम एंड एवलिन्स कैरियर बेंट अपवर्ड. और वहां से उसका कैरियर ऊपर की ओर आगे बढ़ गया. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग वॉज ओवर. दिस डिटर्मिनेशन एंड द हार्ड वर्क, सब कुछ उसके डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क पर डिपेंड करता था, और उसी पर डिपेंड किया. शी हैड डिटर्मिनेशन. उसने डिसाइड कर लिया था, डिटरमाइंड थी कि वो जो है फेमस बनेगी, एक अच्छी म्यूजिशियन बनेगी, और इसके लिए उसने हार्ड वर्क भी किया और वो बनी. She never looked back from that point onwards. From that point onwards, she never looked back. Once Evelyn had overcome the hurdle, she started sensing the different sounds through the different parts of her body. She progressed in her career. एक बार उसने जब सीख लिया different sounds को अपने different body parts से sense करना, उसके बाद वो प्रोग्रेस करती गई अपने कैरियर में, पीछे मुड़ के नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. So Evelyn toured the United Kingdom and performed with a youth orchestra. इसलिए एवलिन ने क्या किया, एवलिन यूनाइटेड किंगडम यूके का टूर किया उसने, और वहां पे एक यूथ के ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म किया. एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और बाय द टाइम एवलिन रीच द एज ऑफ 16 इयर्स, उस समय जब वो 16 इयर्स की एज में पहुंच गई थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो म्यूजिक को अपना जीवन बना देगी. शी ऑडिशनड for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, और उसने एकेडमी के हिस्ट्री में जितना लोगों ने हाईएस्ट मार्क स्कोर किया था, उन सब से ज्यादा स्कोर किया. एवलिन गेन एन ऑडिशन. ऑडिशन क्या होता है? gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough. तो उसने ऑडिशन दिया और एकेडमी के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग उसने गेट किया. She gradually moved from orchestral work to solo performance. और फिर उसने क्या किया, ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस की ओर
आगे बढ़ना शुरू किया। अभी तक वो ऑर्केस्ट्रा में सबके साथ काम करती थी, अब वो सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू किया। अकेले उसने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। ओके, सो एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और अपने 3 साल के जो उसका जो कोर्स था, उस कोर्स के दौरान जितने भी अवार्ड होते हैं, she had captured all the awards. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. And the most important point, if anyone says that Evelyn has done something great, she does not acknowledge that. अगर इन सब के बारे में कोई कहता कि एवलिन ने कोई हेरोइक वर्क किया, कोई ग्रेट वर्क किया, वो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। She is very humble and down to earth. वो बहुत ही humble है, बहुत ही down to earth है। वो कहती, she says, if you work hard and know where you are going, you'll get there. Evelyn says that 2 important things for success are, firstly, hard work and secondly, aim. वो कहती है केवल 2 चीज है सक्सेस पाने के लिए जरूरी। पहला है हार्ड वर्क, द फर्स्ट थिंग इज द हार्ड वर्क एंड द सेकेंड थिंग इज योर टारगेट। अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आपको जाना कहां है, तो निश्चित तौर से विदाउट एनी कंफ्यूजन यू विल रीच ओवर देयर। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with the mastery of some 1,000 instruments. And she did that. She did that. She also achieved her goal. She worked hard and she had an aim to become the topmost, the most famous, the most sought after musician of the world, and she did that. उसको अपना गोल पता था कि उसको क्या करना है। उसको पता था कि उसे वर्ल्ड का मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट बनना है। उसको पता था कि उसको हजारों इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी गेट करना है। उसको पता था कि हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल में उसको अपने आप को बेस्ट प्रूव करना है। उसने किया, एंड शी कंप्लीटेड दैट। अपने हार्ड वर्क से उसने गेन किया। शी गेन मास्टरी ऑफ ऑलमोस्ट 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पता है, अपने हार्ड वर्क के माध्यम से वो हजारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे अपना मास्टरी अचीव किया। एंड शी इज द मोस्ट पॉपुलर मल्टी परक्यूशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वो क्या है मोस्ट पॉपुलर मल्टी परक्यूशनिस्ट है दुनिया की। शी हैज अ वेरी बिजी शेड्यूल। आज उनका शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है, हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल होता है। शी हैज अ वेरी बिजी शेड्यूल। शी हैज प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में उनके प्रोग्राम्स और कंसर्ट्स होते हैं। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly and without hearing. It is intriguing and fascinating, curious. When you watch Evelyn work or perform so effortlessly, although she cannot hear, you get very curious because Evelyn can identify the slightest, the minutest sound made by the musical instruments. It is intriguing, really it is intriguing. It is really curious, it is really fascinating. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. आप उनको इन सब पे इतना एक्यूरेटली वर्क करते हुए देख करके, जबकि वो सुन नहीं सकती, बड़ा फैसिनेटिंग है, क्यूरियस है। क्योंकि वो इवन कोई स्लाइटेस्ट सा माइन्यूटेस्ट जो साउंड है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जनरेट होता है,
वो उसे पहचान लेती है, जान लेती है. In our 2-hour discussion, she never missed a word. पता है? Deborah Cowley took Evelyn's interview, which lasted for 2 hours. Deborah Cowley जो कि इस चैप्टर की राइटर है, उन्होंने एवलिन का 2 घंटे का इंटरव्यू लिया और उस 2 घंटे की इंटरव्यू में एक भी वर्ड एवलिन से मिस नहीं हुआ. She did not miss even a single word. Men with bushy beards give me trouble. हाँ, वो हंसते हुए कहती हैं. Okay, she speaks laughingly. Evelyn says that those men who have long hues and bushy beards give her trouble. Why do they give her trouble? Because when they speak, she cannot see their lip movement as their lips are covered with the bushy beards. उसके जो bushy beards है वो जब वो लोग जब बोलते हैं तो उनको लिप मूवमेंट को पहचान नहीं पाती, इसलिए वो समझ नहीं पाती क्या बोल रहा है. हंसते हुए बोला, It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. और केवल लिप मूवमेंट ही नहीं, it is not only the lip movement. Okay? Evelyn says that she does not only see the lip movement of the person's face, जिससे वो बात कर रही है उसके केवल लिप मूवमेंट को नहीं देखती वो कि वो क्या बोल रहा है, पूरे चेहरे को देखती है, स्पेशली आंखों को. She sees the whole face. That means the entire expression of the face of the speaker. और पूरे के पूरे स्पीकर के एक्सप्रेशन को देख करके और स्पेशली उसके आईज के एक्सप्रेशन को देख करके एवलिन मेक्स आउट what the person sitting in front of her is saying. जो आदमी उसके सामने बैठा हुआ है वो क्या बोल रहा है, उसकी आंखों के एक्सप्रेशन से वो जान लेती है. She tells to be able to know what the other person who is sitting in front of her is speaking. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. Flawlessly means without a fault or mistake. A lilt is a way of speaking. The writer says that Evelyn's speech is flawless and she has a Scottish accent. बताती है कि राइटर बताती हैं कि उसकी जो स्पीच है ना वो फ्लॉलेस है, बिना किसी गलती के है, विदाउट एनी मिस्टेक और विदाउट एनी फॉल्ट है. उसमें थोड़ा सा स्कॉटिश एक्सेंट है. चूंकि शी बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड और हर वॉइस हैज दैट एक्सेंट. वो जो एवलिन ग्लिनी है वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है, तो उसका जो एक्सेंट होगा ना दैट मस्ट बी स्कॉटिश. Evelyn says that she can speak clearly because she had learned the language. Yes, my speech is clear because I could hear till I was 11. Yes, वो कहती है कि वो स्कॉटिश बोल पाती है. क्यों? क्योंकि वो स्कॉटलैंड में रही है और जब तक वो 11 साल की नहीं हुई तब तक उसने लोगों को बोलते हुए सुना था. Scottish. That is why she was able to speak Scottish. But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. But it may be an explanation regarding Scottish, but it may not be a proper explanation for the Japanese or other languages like French. She has the mastery over the French as well as the basic Japanese. So how was she able to speak Japanese and French? But after becoming deaf, Evelyn also learned 2 new languages. She has learned French and basic Japanese. So one wonders how she could learn these 2 new languages also despite her deafness. As for music, she explains it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my.
So here Evelyn explains how she identifies music. यहाँ पे आप पाएंगे कि जो एवलिन है वो एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से वो म्यूजिक को आइडेंटिफाई करती है. इट क्रिएट्स सेंसेशन इन हर स्किन, इन हर चेक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर. वो कहती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. जो म्यूजिक है, म्यूजिक उसके शरीर के हर पार्ट से इंटर करती है. It tingles in the skin. Tingles means causes a slight pricking or stinging sensation. Okay, so it tingles in the skin. ये उसकी जो म्यूजिक है वो इसके स्किन में एक प्रकार से प्रिकिंग, स्लाइट प्रिकिंग करती है. मेरे चेक बोन्स में, उसके चेक बोन्स में, चीक बोन्स में, आई मीन चेक बोन्स में, और इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि उसके बालों में भी. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. Okay, so every part of Evelyn's body responds to music. When she plays the xylophone, she causes sticks, and she uses sticks, and she can sense the vibration of the sound produced by the xylophone pass through the sticks up into her fingertips. वो कहती है कि वो xylophone बजाने के लिए स्टिक्स का यूज करती है और वो सेंस कर सकती है वाइब्रेशन को, साउंड के वाइब्रेशन को, जो कि xylophone प्रोड्यूस कर रहा है उसके स्टिक्स के माध्यम से. उसके फिंगर टिप्स पे वो फील कर लेती है. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. And not only that, when Evelyn plays the drum, she leans towards the drum. जब वो ड्रम प्ले करती है तो वो ड्रम के ऊपर झुक जाती है. And she can feel the echo flowing into her body. और ड्रम के इको को अपने बॉडी में फ्लो करते हुए वो फील करती है. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. Whenever Evelyn performs, she performs on a wooden platform. जब कभी भी एवलिन जो है परफॉर्म करती है तो वो लकड़ी के एक प्लेटफॉर्म पे जो है सारे के सारे परफॉर्मेंस देती है. And during that she removes her shoes. वो अपने जूतों को रिमूव कर देती है so that she can feel the vibrations of the musical instrument pass through the floor. जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जो वाइब्रेशन है वो महसूस कर सके अपने पैरों के माध्यम से, फ्लोर के माध्यम से, into her feet and up her legs. That is how she can feel the sound of the musical instruments. इस तरीके से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को फील करती है. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. No, it is not a surprising thing कि एवलिन अपने ऑडियंसेस को डिलाइट करती है. She gives delight. Evelyn is delight to hear. एवलिन को सुनना ऑडियंसेस के लिए डिलाइटफुल होता है. She gives very good solo performances. In the year 1991, she was presented with this award. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. 1991 में उसको जो है रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया. जो मास्टर परकशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड्स, वो ही सेज गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वो कहते हैं कि ईश्वर ने भले ही एवलिन से उसकी सुनने की कैपेसिटी को छीन लिया हो, हियरिंग कैपेसिटी छीन लिया हो, लेकिन उसको और भी कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स दिए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटीज उसको दी हुई है. What we hear, she feels, yes,
वॉट एवर वी हियर, जो कुछ भी हम सुनते हैं वो उसको फील करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. एंड दैट फीलिंग दैट इज मेड बाय एबलिन, दैट इज मोर डीपली देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस. उसकी जो फीलिंग है वो हम सबसे ज्यादा है. किसी चीज को जितना हम सुन के महसूस कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो अपनी बॉडी के बॉडी पार्ट्स से महसूस करती है. दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली. और शायद इसीलिए वो म्यूजिक को इतने अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाती है, एक्सप्रेस कर पाती है. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक. यस, शी कन्फेसेस, वो कन्फेस करती है कि वो वर्कहोलिक है. वर्कहोलिक इज अ पर्सन who finds it difficult to stop working, जो कि काम करना नहीं रोक पाता है. तो वो एक्सेप्ट करती है कि वो वर्कहोलिक है. I have just got to work, often harder than classical musicians. अगर उसको काम करना है, उसको कुछ काम करना है, तो वो फिर क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करेगी. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. लेकिन जो उसके पास रिवॉर्ड्स है ना अपने काम करने के, वो इनॉर्मस है. नाउ बी एट पार विद दोज पीपल हु कैन हियर, हु आर क्लासिकल म्यूजिशियंस. एवलिन वर्क्स वेरी हार्ड. एवलिन सेज दैट द रिवॉर्ड्स शी गेट्स फॉर हर हार्ड वर्क आर ह्यूज एंड बिग. मतलब जो देख के सुन के जिनके जो नॉर्मल क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क करती है वो. लेकिन नो डाउट उसके हार्ड वर्क का जो रिवॉर्ड है वो भी ज़्यादा ही बड़ा होता है. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. Yes, जो उसकी रेगुलर कॉन्सर्ट्स हैं उनके साथ साथ वो प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में भी अपने कॉन्सर्ट देती है. She also gives high priority to classes for young musicians. वो जो यंग म्यूजिशियंस की क्लासेस देने के लिए दिन पाती है, वहां पर वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, ग्रेट इंपॉर्टेंस देती है वो. Evelyn does charity, this is the charity works. And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, जो एंड रिचलिन है बेथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की, वो कहते हैं सी इज अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. वो डेफ चिल्ड्रन के लिए एक साइनिंग इंस्पिरेशन है. दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो. वो देखते हैं कि वो आज इसके कारण दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कि वो नहीं आ सकते. ओके, सो नाउ Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie has achieved so much in life that those people who were double her age have also not achieved those many things. That much popularity, that those many awards as Evelyn has done. Evelyn ग्रेनी ने आज उतना गेन कर लिया है, उतने अवार्ड्स गेन कर लिया है, उतनी चीज़ें गेन कर लिया है, इतनी पॉपुलैरिटी के गेन कर लिया है जो कि उससे डबल एज के लोग भी नहीं पाए. शी हैज ब्रॉट परक्यूजन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. यस, orchestra is a group of people who are playing different musical instruments and generally the percussion instruments like the drums and the xylophone are placed at the back end of the orchestra. हम सभी जानते हैं ऑर्केस्ट्रा में ये जो percussion instrument है ये पीछे साइड में रखे जाते हैं, वो आगे नहीं रखे जाते, लेकिन और they are placed at the side या फिर साइड में रखे जाते हैं. But as Evelyn performs solo, लेकिन चूंकि एवलिन सोलो परफॉर्मर है, शी गिव्स स्पेशल परफॉर्मेंसेस विद द परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट. वो इन परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट का सोलो परफॉर्मेंस देती है. द परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट
have come in front of the orchestra due to the work of एबलिन गिनी. एबलिन गिनी के कारण आज वो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट पे आ गए. ओके, एंड डिमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और उसने ये दिखा दिया कि जो परक्यूशन मूवमेंट होते हैं, जो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो भी काफी मूविंग होते हैं. शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. एबलिन्स स्टोरी इज एन इंस्पिरेशन टू दोज पीपल हु आर फिजिकली डिसेबल्ड. उनको हम डिसेबल तो आज कहते नहीं है फिलहाल, दे आर स्पेशली एबल्ड पीपल. तो ये जो एबलिन की स्टोरी है वास्तव में उसको बताती है कि किस प्रकार से स्पेशली एबल्ड है वो, दिव्यांग है वो. लेकिन शायद जब स्टोरी लिखी गई थी डेबोरा कॉली के द्वारा, उस समय तक उनको डिसेबल ही बोला था. तो एबलिन की स्टोरी क्या इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो फिजिकली डिसेबल्ड है. पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग जो उसकी ओर देखते हैं वो कहते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन. लोग देख के कहते हैं कि अगर वो ये कर सकते हैं, अगर वो ये कर सकती है तो वो लोग भी उसे कर सकते हैं. आई कैन. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और यही नहीं, इट इज श्योर कि उसने मिलियंस ऑफ लोगों को इनॉर्मस प्लेजर दिया है. उसने she has given huge pleasure. Evelyn has given a lot of pleasure to her audience by playing such good music. So students, in this way we had completed the first part of the chapter, The Sound of Music. You will get work from it. We shall meet in the next class. Thank you. Have a nice day.